Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome to IKRA online classes. My children, today's our subject is English third language. So, my dears, how are you? Are you missing our school? Are you missing the friends? Your friends, your classes? Yes, children. Who is your faithful friend? Or who is your best friend? Oh, Aisha is your best friend. So dears, why Aisha is your best friend? Will you tell me? What qualities do you like in Aisha? Are you define me who is your faithful friend? Okay children, I will say you about a faithful friend. So, to understand who is our faithful friend, let us came to our poem Faithful Friend. So, today we are going to be read about and recitation about the poem, a beautiful poem, Faithful Friend. Yes children, before starting the poem, there is a proverb here. So what is that? A fluttering spoon never feeds and a friend in need is friend indeed. So a fluttering spoon never feeds means what? This is a proverb. जैसा कि उर्दू में हम कहावत कहते हैं ना. So flattering यानी चापलूसी करना, यानी सामने मुंह के सामने हमें अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, यानी मुंह पे राम बगल में छुरी जिसको हम कहते हैं ना, इस तरह के जो फ्रेंड्स रहते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं कि ए फ्लैटरिंग स्पून नेवर फीड्स. ये हमारे गुड फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते कि मुंह पे हमारे को अच्छा बोल रहे हैं, पीछे हमारी बुराई कर रहे हैं. बट हु इज अवर गुड फ्रेंड? अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड. इंडीड हकीकत में, वाकई में, हकीकत में, रियली हमारे फ्रेंड कौन होते हैं? फ्रेंड इन नीड. नीड ज़रूरत, जो ज़रूरत में काम आते हैं, जो वक्त ज़रूरत हमारे काम आते हैं, वही हमारे फ्रेंड होते हैं. ऐसा नहीं कि मुंह के सामने हमारे बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत हमें प्रेस कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे गीबत कर रहे हैं, तो वो हमारे फेथफुल फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते. सो ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड. सो टू नो मोर अबाउट दिस friend and friendship. So already in our 9th class also we have to be read about a beautiful poem that is a friendship. So here also we are going to read about faithful friends. So children, let us came to the poem. So faithful friends. So read and enjoy this poem. Everyone that flatters thee is no friends in misery. Words are easy like the winds. Faithful friends are hard to find. Faithful friends are hard to find. Everyone will die friend. Every man will be thy friends, while thou hast wherewith to spend. But if store of crown is scant, but if store of crown is scant, no man will supply thy want. But if store of crown is scant, no man will supply thy want. If that one be prodigal, bountiful they will call him. If he be inclined to wise, weakly will him entice. But if fortune once do frown, then farewell his great renown. They that frown on him before use his company no more. So here is a by Anon. Anon means unknown. गुमनाम बोलते ना, पोएट का नाम यहाँ पे मालूम नहीं है, एनोनमस जैसा बोलते हैं. So Anon. So चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन है ना, इसकी समरी की तरफ जाएंगे. इसमें आने वाले राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए हैं, इसकी समरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमें 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन रहता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए
good friends or write the summary of faithful friends. Write the summary of faithful friends. So let us came to the explanation and summary of faithful friends. So the first stanza here. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. So everyone that flatters thee, flatters मुंह के सामने हमारे प्रेस करने वाले, तारीफ करने वाले, यानी चापलूसी करने वाले करके कहते हैं ना हम इस तरह से. सो यानी मुंह के सामने मियाँ मिट्ठू बनने वाले, हमें अच्छा करने वाले. धाय ये जो है ओल्ड क्लासिकल इंग्लिश का वर्ड है. सो इज नो फ्रेंड इन मेजरी. मेजरी गम में, तकलीफ, दुख में. यहाँ पर मैं मीनिंग भी लिखी हूँ, आप बाद में इसको लिख के लीजिए. फ्लैटर यानी चापलूसी करने वाले, यानी मुंह के सामने प्रेस करने वाले, हमारी तारीफ करने वाले, हमें खुश करने के लिए, हमें प्लीज करने के लिए, हमें हमारी तारीफ जो करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फ्लैटर्स कहते हैं. धाय यानी यू, ओ या तुम इस तरह कहते हैं. मेजरी गम, तकलीफ, पेन या बैड टाइम भी हम कह सकते हैं. सो एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी इज नो फ्रेंड इन मिजरी. सो हु आर फ्लैटरिंग अस, जो हमारी चापलूसी कर रहे हैं, यानी हमारे मुंह के सामने हमें बहुत अच्छे गुड बोल रहे हैं, यानी तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड है करके कह रहे हैं, झूठी मूठी हमारी तारीफ करते जा रहे हैं. सो इज नो फ्रेंड इन मिजरी. मिजरी दर्द में, तकलीफ में वो हमें काम आने वाले नहीं हैं. जब तक हमारे पास में है तब तक वो हमारे फ्रेंड्स. जब हमारे पास से हमारी दौलत खो गई तो वो हमारे फ्रेंड्स, यानी पीठ पीछे वो बुराई करने वाले और सामने जो है हमारी तारीफ करने वाले. इज नो फ्रेंड इन मिजरी. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. So बहुत easily हमारी तारीफ करते हैं, जिस तरह से like a wind, हवा देखो हर तरफ easily चलते रहती है, ऐसा बहुत easily इतने मीठी मीठी बातें करते हैं हमारे सामने. जैसे ही हम पीछे हो गए, चलो हमारी गीबत शुरू हो गई वहाँ पे, है ना. तो ऐसे फ्रेंड्स को ही हमने क्या कहावत यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? A flattering spoon never feeds. So these flatters, they are not our friends because they leave us in our misery. So words are like the wind. Faithful friends are hard to find. So it is very difficult to find out the faithful friend. Faithful जो भरोसे के काबिल होते हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, जो हकीकत में हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारी इस्लाह करने वाले रहते हैं. यानी हमारे अंदर कोई बुराई है तो सामने ही बोलते हैं, पीछे हमारी गिबत नहीं करते. तो ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे फेथफुल फ्रेंड्स को फाइंड आउट करना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है करके. सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. आर यू अंडरस्टैंड? Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. So dear children, here is a word like. So words are easy like a wind. Here we make a comparison of words to a wind. यहाँ पे words को जो है wind से comparison करें, जिस तरह से हम उर्दू में करते हैं ना, अक्सर गज़लों में, नज़मों में आता है. जिस तरह आप गज़ल में कहते हैं कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है. सी वर्ड यहाँ पे हम जो इस्तेमाल, यानी उस जैसी, यानी जिसको हम सनते तशबिया कहते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे देखो वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड कह रहे हैं. नहीं, विंड एंड फाइंड ये क्या है, दोनों राइमिंग वर्ड्स है. उसके साथ साथ यहाँ पे लाइक जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो कंपैरिजन है यहाँ पे किस किस के दरमियान? वर्ड्स एंड विंड के दरमियान. तो यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हुए अगर अज और लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो उस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं, है ना. सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन. यहाँ पे देखो क्या था? वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड. लाइक जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ये कौन सी है? सनत तशबिया इसको कहते हैं, सिमिली कहते हैं. सिमिली यानी क्या है? जस्ट हम देंगे. जिस तरह से यहाँ पे और एक सेंटेंस में ली हूँ, माई लव इज लाइक ए रेड रोज. तो यहाँ पे लव को, शफकत को, प्यार को जो है यहाँ पे रेड रोज से क्या करे हैं? कंपेयर करे हैं, मुवाजना करे हैं. और मुवाजना करने के साथ साथ लाइक का इस्तेमाल हुआ है. तो दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करते हुए हम अज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं. तो वो कौन सी सनत होती है, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? सिमिली कहते हैं उसको. तो व्हाट इज सिमिली? इन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस देयर आर सर्टन effective ways of saying things without saying them.
डायरेक्टली कॉज फिगर ऑफ स्पीच, उन्हें हमें क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम सनत तजाद या सनत तकरार रहते हैं, सनत तलमिया है, सनत तशबिया जैसे होते, उसी तरह से दे आर यूज टू एम्फेसिस, क्लेरिफाइड एंड एम्बेलिश व्हाट इज बीइंग said. So, like simile, metaphor, personification, alliteration, synecdoche, climax, these are all figure of speech. तो हमारे अपनी अगली क्लास में जो हम ग्रामर क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. अब यहाँ पे वर्ड लाइक आया है तो इसके लिए बोल रहे जस्ट हम सिमिली क्या है कर इसके बारे में देखेंगे. सो सिमिली इज ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point is common and we are use the word like, as और so. इस तरह से नहीं, वो जैसा, उस जैसी, जैसा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसी तरह से नहीं. शायर जैसा बहादुर बोल रहे हैं तो उसकी बहादुरी और शायर को यानी उसकी जो बहादुरी है यहाँ पे, उसको हम शायर की बहादुरी से क्या कर रहे हैं, तशबिया दे रहे हैं. तो उस जैसा या जैसी जो कहते हैं, लाइक और अस जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, रानी इज अस ब्यूटीफुल अस काजल, इस तरह कह रहे हैं हम, यानी काजल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही मशहूर है, तो रानी जो है काजल की जैसा खूबसूरत है. उसी तरह से द मैंगो इज अस स्वीट अस हनी, तो यहाँ पे लाइक और अस का इस्तेमाल हो रहा है. जिस तरह ऊपर हम देखें, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, यहाँ पे द मैंगो इज अस स्वीट अस हनी, हियर इज ए देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन हनी एंड मैंगो. हाँ, लाइक द सेम वे अहमद इज ब्रेव लाइक ए टाइगर एंड दिस बिल्डिंग इज लुकिंग लाइक ए ताजमहल. इस बिल्डिंग को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ताजमहल से. ये बिल्डिंग कैसी दिख रही है, ताजमहल जैसी दिख रही है. सो इस तरह से जब अज और लाइक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं. फिर मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट ग्रामर क्लास. सो लेट अस गो टू द पोएम. नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा जो है यहाँ पे, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड while thou hast wherewith to spend, but if store of corn be scant, no man will supply thy want. So every man will be thy friend, तो सभी जो है उसके फ्रेंड बनते हैं. while thou hast everywhere with to spend, when he had to be ready to spend on him. A person is having a wealth and he was ready to spend his wealth, his fortune, his amount. उसके पास जो भी है वो स्पेंड करने के लिए, स्पेंड करना यानी खर्च करना, स्पेंड करना, खर्च करना. धाय यू फ्रेंड दोस्त, while दो हैज यानी रेडी है, वेयर विथ यानी उसके हमेशा साथ में रहने के लिए, स्पेंड करना, खर्च करना, जब हमेशा उसके साथ रहें, हम उसके ऊपर खर्च करने के लिए रेडी हैं. बट इफ स्टोर ऑफ क्रॉन्स बी स्कैंट, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट. इफ स्टोर ऑफ क्रॉन्स, क्रॉन मीन्स यहाँ पे ताज नहीं है, क्रॉन जो है ये इंग्लैंड की एक कदीम करेंसी है, ये ब्रिटिश की एक कॉइन है, करेंसी है ये. सो स्कैंट यानी खलील या कमी, लैकनेस यानी वहाँ पे उसकी कमी हो गई, मतलब उसकी फॉर्चून चली गई, उसके पास की दौलत चली गई. नो मैन विल बी सप्लाई दाई वांट, अगर उसकी हम ज़रूरतें नहीं पूरी करें तो वो हमारा साथ देते हैं, छोड़ देते हैं. तो ऐसे फ्रेंड जो है फेथफुल फ्रेंड नहीं है. जब तक दौलत है उसके पास एंजॉय कर रहे हैं, जब दौलत चली गई उसको अकेला छोड़ दे, गम में अकेला छोड़ दे, मैजरी में अकेला छोड़ दे, इसको हम फ्रेंड कहते हैं क्या? नहीं. फ्रेंड कौन होता है? हु इज़ ए फेथफुल फ्रेंड? ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड कहते हैं. फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, जो कि हमें वक्त ज़रूरत काम आता है. सो फ्रेंड्स किसके लिए आते हैं? फ्रेंड्स आर देयर इन स्माइल एंड टीयर्स, जो हमारे स्माइल में भी रहना, हमारे टीयर्स में भी रहना, गम में भी हमारा साथ देना, खुशी में भी हमारा साथ देते हैं. फ्रेंड्स आर देयर इन हैप्पीनेस और फियर हम कहते हैं, है ना, जिस तरह से हम 9th क्लास में पढ़े थे ना. फ्रेंड्स आर देयर इन स्माइल एंड टीयर्स, फ्रेंड्स आर देयर इन हैप्पीनेस और फियर, फ्रेंड्स आर फन एंड फ्रेंड्स आर क्लेवर, है ना. तो हमारे गम में भी, हैप्पीनेस में भी हमारे साथ में रहे, फियर में भी हमारे साथ में रहे, स्माइल में भी हमारे साथ में रहे, टीयर्स में भी हमारे साथ में रहे. सो दोज आर फेथफुल फ्रेंड. ए फ्रेंड हु आर नॉट विथ us in our misery, he is not a faithful friend. So this is the second stanza. Yes children, are you understand? Yes. Came to the next stanza. If that one be prodigal, bountiful, they will him call. If
he be inclined to voice quickly will him entice. So if that one be prodigal, prodigal lost और अजनबी या जिसको हम खर्च करना कहते हैं, सो bountiful they will call him, तब उसको हम वो क्या कहते हैं, जब हमें उनके ऊपर खर्च करने के लिए रेडी है, we are ready to spend our fortune to him, spend our amount for them, we gave us parties, we enjoy them, then they called us a bountiful. तो हमें लोग क्या कहते हैं, बहुत ही bountiful है, फराग दिल है, जेनरस है, बड़े दिल वाला है करके कहते हैं. कब वो फ्रेंड कैसा भी रहो, उसके पास वो वेल्थ है, वो खर्च कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि यू आर बाउंटीफुल. अगर वो बुरे भी कैरेक्टर का है तो ऐसे फ्रेंड जो रहते हैं, जो कि फ्लैटरिंग स्पून के जैसे रहते हैं, वो उसकी इस्लाह करने के बाद नहीं, इस्लाह नहीं करते, वो उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाउंटीफुल कह रहे हैं, जेनरस कह रहे हैं. दे विल कॉल हिम, अरे बहुत वो फराग दिल वाला है, बड़े दिल वाला है, गुड फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है कहते. बट इफ ही बी इंक्लाइन टू वॉइस, अगर वो इंक्लाइन टू वॉइस, दे हैव टू बी इंक्लाइन, इंक्लाइन आमादा करना. यहाँ तक कि जो ये ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, ये जो फ्लैटरिंग स्पून जैसे जो फ्रेंड्स रहते हैं, यानी ये जो चापलूसी करने वाले रहते हैं, वो उसको कभी कभी क्या करता है, देवर इंक्लाइन, इंक्लाइन मायल करना, रागिब करना, यानी वॉइस, वॉइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बुरी चीज की तरफ, कभी कभी क्या करते हैं, उसको बुरे चीज की तरफ भी मायल करते. चल तेरे पास दौलत है तो आयश करेंगे, आराम करेंगे. वो गलत राह पे भी जा रहा है तो उसको सही करने की वजह वो क्या करता है, उसके गलत कामों को उकसाते, क्योंकि उसके पास फॉर्चून है, उसके पास दौलत है, उसके पास वेल्थ है, और वो वेल्थ को क्या कर रहा है, यहाँ पे उनके ऊपर खर्च कर रहा है. तो उस खर्च करने वाले को, बेचारे को, उसकी इस्लाह करने के बजाय ये लोग क्या करते रहते हैं, उसको मिसलीड करते थे, गलत राह पे उसको दिखाते रहते हैं, इसको यानी बुरे चीज की तरफ उसको मायल करते रहते हैं. तो ऐसे फ्रेंड गुड फ्रेंड हो सकते हैं? नो, दे आर नॉट फेथफुल फ्रेंड, दे आर नॉट गुड फ्रेंड. एंड इफ ही बी इंक्लाइन टू वॉइस क्विकली विल बी एंटाइंस, एंटाइंस उकसाना, हिम्मत अफजाई करना या मोटिवेट करना. उसको मोटिवेट करते हैं, चल चल हम लोग पार्टी करेंगे, पार्टी करना सही है. बाप बेचारे की, बाप ने इतने मेहनत से दौलत कमाया है, वो उसको यहाँ पे सुधारने की कोशिश नहीं करते. वो क्या करते हैं, मुंह पे उसको चापलूसी करके चल उसकी दौलत को लूटने के लिए चले जाते हैं. उसकी बहुत तारीफ करते हैं, किसकी, वन हु विल बी प्रोडिगल, जो उनके ऊपर खर्च कर रहा है, जो उनके ऊपर स्पेंड कर रहा है, तो उसकी चापलूसी करने वाले ये फ्रेंड्स रहते हैं. सो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं, इस तरह के जो फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट फेथफुल फ्रेंड. फेथफुल फ्रेंड्स कौन होता, हु आर हेल्प अस इन आवर मिजरी, हु इज हेल्प अस इन आवर बैड टाइम, जो हमारे बुरे वक्त में साथ देता है. ए फेथफुल फ्रेंड इज वन हु हैव टू बी हेल्प अस इन आवर मिजरी, who is help us in our bad time, who is help us when we have to be lost our fortune, when we have to be lost our wealth, जब अपनी fortune, अपनी wealth को हम खो देते हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, उस वक्त बुरे वक्त में हमारे जो काम आ रहा है वो सही फ्रेंड है. ऐसा नहीं कि हमारे पास दौलत है, उस दौलत को हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो तब वो हमें बाउंटीफुल कर रहा है, जेनरस कर रहा है, फराग दिल वाले कह रहा है. तो ये फ्रेंड जो है फेथफुल फ्रेंड नहीं है. ये सिर्फ जो है मुंह पे हमारी तारीफ करने वाले, पीछे क्या करने वाले, गीबत करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर खर्च करने के लिए जब तक रेडी है वो क्या करते रहते हैं, हमारी तारीफ. जैसे ही हमारे हाथ तंग हो जाते हैं, जितनी तारीफ कहते हैं सभी मिट्टी में मिला देते हैं, है ना. तो दे आर नॉट ए गुड फ्रेंड, दे आर नॉट फेथफुल फ्रेंड. सो केम टू द लास्ट स्टंजा. सो चलिए अब आखिरी. But if fortune once do frown, then farewell his great renown. They that frown on him before, use his company no more. But if fortune, fortune खुशकिस्मती, मतलब मीन्स यहाँ पे दौलत भी हो सकता है, वेल्थ भी हो सकती है. So once do frown, frown angry, यानी किस्मत उस पर गुस्सा हो गई, मतलब उसके पास की फॉर्चून चली गई, उसके पास की वेल्थ चली गई. देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन, दे से गुड बाय, दे से फेयरवेल, बाय बाय कर देते उसको. क्यों? उसके पास से फॉर्चून ही चली गई. तो ऐसे फ्रेंड फेथफुल फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड गुड फ्रेंड है? नो, नॉट एट ऑल. सो बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्रॉन, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन. अभी तक उसकी जो रिनॉन था, उसकी जो शोहरत थी, वो सभी उसको क्या कर देते हैं, वो
एनॉन कर देते हैं, उसके रिनॉन को एनॉन, सब गुमनाम कर देते उसकी शोहरत को। अभी तक इतना खर्च किया, इतनी तारीफ कर रहे थे, उसको सर आंखों पे बिठा के रखे थे, अब उसको क्या बोलते हैं? गुड बाय, फेयरवेल। देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन, दे दैट फ्रॉन ऑन हिम बिफोर, यूज हिज कंपनी नो मोर। अभी तक जितना उसने उनके ऊपर शफकत झड़ रहे थे, लव उनके बहुत ही, दे हैव टू शोइंग लव फ्रॉन, बिहेव अस वन शो लव, ऐसा बिहेव कर रहे थे कि बहुत प्यार करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? उसको अलविदा कह रहे हैं। क्यों? बिकॉज द फॉर्चून वंस फ्रॉन, द फॉर्चून गॉन, उसकी खुशकिस्मती चली गई, दौलत चली गई। तो अब ये फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? उसको फेयरवेल बोल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड गुड फ्रेंड है? नो, दे आर बैड फ्रेंड्स, बिकॉज they leave us in misery, they leave us in bad times. When we have to be lost the fortune, they will not supporting us, they leave us, they say us goodbye, then they farewell his great renown, then they that frown on him before, use his company no more। अब उसकी कंपनी भी इनको पसंद नहीं आ रही है, उसको बुरा फ्रेंड कह रहे हैं वो। अभी तक जो है जिसके तलवे चाट रहे थे क्योंकि उसके पास दौलत थी, उसके मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उसको क्या कह रहे हैं? यहाँ पे गुड बाय कह रहे हैं, उसको अलविदा कह रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड जो है फेथफुल फ्रेंड्स नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, फेथफुल फ्रेंड कौन होते हैं? हु कैन बी योर फेथफुल फ्रेंड? ए फ्रेंड हु हेल्प अस इन माइजरी, हु हेल्प अस इन आवर बैड टाइम, हु हेल्प अस व्हेन वी हैव टू बी लॉस्ट द फॉर्चून, जब हमारे पास फॉर्चून नहीं है, वेल्थ नहीं है, हम गम में हैं, वक्त ज़रूरत हमें जो मदद कर रहे हैं, दे आर द रियल फ्रेंड। सो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, हकीकत में वही क्या है? हमारे फ्रेंड हैं। सो व्हेन विल एवरीवन बी योर फ्रेंड? व्हेन वी हैव द फॉर्चून, है ना? जब हमारे पास फॉर्चून है, वेल्थ है, तो बहुत से लोग हमारे फ्रेंड बनने के लिए आते हैं। बट वंस वी हैव टू बी लॉस्ट द फॉर्चून, दे लीव अस अलोन, हमें वो अकेला छोड़ देते हैं। सो दे आर नॉट फेथफुल फ्रेंड्स। सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड द पोएम? यस। हु इज अवर फेथफुल फ्रेंड देन? हु हैव टू बी हेल्प अस इन माइजरी, हु हेल्प अस इन अवर बैड टाइम। सो चिल्ड्रन, बी केयरफुल ऑफ दोज फ्रेंड्स। मीन्स ए फ्रेंड्स हु इज ए फ्लैटरिंग स्पून नेवर फीड्स, जो बोल रहे हैं ना, इस तरह के फ्रेंड से, ऐसे चापलूसियों से बचिए जो हमारे मुंह के सामने हमारी बुराई कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारी इस्लाह करने के लिए कर रहा है। ही इज़ ए गुड फ्रेंड। सो अगर हमारे अंदर खामियां हैं, किसी को, आपको भी जो है किसी की खामियां दिखाई दे रहे, तो मुंह पे बोल दो। मुंह पे बोलना जो क्या है, उसकी इस्लाह करना है, उसको सुधारना है। अगर वही उसकी बुराई पीठ के पीछे बोल दे, वो गीबत हो जाएगी, और गीबत करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। अपने भाई को मुर्दार करके खाने के बराबर है, हदीस में भी इसके बारे में है ना। तो इसलिए अगर किसी में बुराई दिख रही है, तो वहीं पे जो है उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। पीठ पीछे हम किसी की गीबत नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, और जो मुसीबत में है उनको मदद करना, उनके रियल फ्रेंड बनना चाहिए, उनके गुड फ्रेंड बनना चाहिए, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है गुड फ्रेंड बन के रहेंगे, वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आएंगे, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। हम यहाँ से क्या लेके जाना है ना, अच्छे अखलाक लेके जाना है, अच्छे आदत लेके जाना है। इसलिए जो है गुड फ्रेंड बन के रहिए, अच्छे फ्रेंड बनिए, वक्त ज़रूरत काम आइए, मुसीबत ज़दाओं की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। बी ए गुड फ्रेंड, बी ए फेथफुल फ्रेंड माय डियर चिल्ड्रन। सो आर यू एंजॉय द पोएम? यस चिल्ड्रन, you became a good friend, you became a great man, a generous man, a good citizen of our India. Okay children, take your homework. Yes, the first question for you, write the characteristic of a good friend. So first question for you, write the characteristic of a good friend. good friend के कैरेक्टरिस्टिक हो, अपने गुड फ्रेंड को नज़र में, दिमाग में रखो, उसकी जो जो भी खूबियाँ आपको याद आ रहे लिखते चले जाइए। कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियात। सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्रेंड, आपके फ्रेंड की खुसूसियात लिखते जाओ, यही गुड फ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात होंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द पोएम फेथफुल फ्रेंड। समझ में आई ना अभी तक जो एक्सप्लेन की मैंने? सो दिस इज द समरी ऑफ फेथफुल फ्रेंड।
So you have to be write the summary of the poem Faithful Friend. Next question. Who according to poet is your faithful friend? So who according to poet के मुताबिक, शायर के मुताबिक आपका faithful friend कौन है? So yes children, these your questions. So ये क्या है आपके क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है. So children, do your homework, study well, recite this poem and remember this poem also. Remember the summary of or by head the summary of poem. By understanding you have to be write the summary of poem Faithful Friend. Take care of your health. Okay. Goodbye. Allah Hafiz. Shabba Khair.